आज इस वीडियो में हम आगा खान यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन बोर्ड क्लास 9th मैथमेटिक्स 2021 का एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करेंगे। सो लेट्स कम टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस ईयर। So here we have question number 1 and 2. In these two questions we have two sets, set M and N. We have these two sets, or in those sets related we have a question. In question number 1 we have to find M minus N. इन दोनों सेट्स का सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है हमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सेट M that is 0, 1, 2 and 3, and we have to subtract 1, 3, 4 and 5. So हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, and we know the basic operation of subtraction of sets. So 1, 3, 4, 5 will be subtracted, 1 and 3 common elements है वो cancel हो गए. So remaining elements in set M we have is 0 and 2. So the correct answer for this question number 1 is option B. Now let's see question number 2. We have another simple question, set N union M. We have to perform the union of these two sets, N union with set M. So set M is 1, 3, 4, 5, and union with set M, that is 0, 1, 2, 3. So अगर हम इनका यूनियन परफॉर्म करें, so we will get 0, 1, 2, 3, 4 and 5. So the correct answer will be option C. We have the union of these two sets as 0, 1, 2, 3, 4, 5. Now let's come to question number 3. For the Cartesian product PQ, that is 1, M, 1, 3, 4, M, 4, 3, 4, 7M and 7, 3. We have to find the number of elements in set Q. So we know that the set P will be equals to domain of this Cartesian product, while the set Q will be equal to the range of this Cartesian product. So Q हमें find out करना है. So Q will be equal to the range. So the values of or the elements of set Q are M, 3. So these two are the elements that are present in set Q. And if we talk about set P, so set P will be equals to 1, 4 and 7. So यहाँ हमारे पास जो है वो set P और set Q की values आ गई. So the number of elements in set Q, as we can see, are M and 3. So the correct answer is option D. Now let's see the question number 4. In question number 4 we have a mapping from set X to set Y, and we have to identify that which function is given. So as we can see, we have the element in set X as a comma b. Set X is equal to a comma b, and set Y is equal to C, D and E. और हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा फंक्शन गिवन है. सो एज वी कैन सी दैट डोमेन ऑफ दिस फंक्शन is equal to set X. It's mean this is a function, and from this mapping we can see that range of this function is not equal to set B. Rather the range is the subset of y
रेंज जो है वो सबसेट है, और इन सिंपल वर्ड एज वी कैन सी रेंज जो है वो कंप्लीट यूज नहीं हुई है, दिस एलिमेंट ई इज स्टिल unused. So this type of function is the into function. इस तरह का फंक्शन जो है वो इनटू फंक्शन कहलाता है, और साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ रेंज रिपीट नहीं हो रही. एवरी यूनिक आइडेंटिटी इन सेट X has the unique image in set Y. There is no repetition. It means this function is one function as well. So the correct answer for this question will be option C, that this function is an into function as well as one-to-one function. So the correct answer is option C. Now let's see the question number 5. If the element A is removed from set Y, अगर हम यहाँ से इस एलिमेंट E को रिमूव कर दें, तो रिमूव करने से दिस मैपिंग और दिस फंक्शन विल बिकम व्हाट. सो हमारा फंक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा A कॉमा B एंड C कॉमा D. सो दिस इज सेट X एंड दिस इज सेट Y. अगर हम मैपिंग परफॉर्म करें सो A इज टू C एंड B इज टू D. तो हमने यहाँ से E को रिमूव कर दिया. सो आफ्टर रिमूविंग E, as we can see that this is a function in which domain is equals to set X and range is equal to set Y. इस तरह से ये फंक्शन जो है वो हमारा ऑन टू फंक्शन बन जाता है, और साथ साथ इफ़ यू कैन सी दैट देयर इज़ नो रिपीटेशन, इट्स मीन दिस इज़ one फंक्शन एज वेल. सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5 विल बी ऑप्शन डी, जिसमें हमारे पास one फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन दोनों मौजूद हैं. सो डी इज़ द राइट आंसर. Now let's see question number 6. In question number 6 we have the set A 1, 2 and 3, और साथ साथ हमें A union B given है 1, 2, 3, 4, 5, and we have to identify the possible values of B के B के क्या क्या values हो सकती हैं. So 1, 2, 3 and A union B has 1, 2, 3. इसका मतलब है कि सेट B में 4, 5 मौजूद होगा, और 4, 5 के साथ साथ 1, 2 या 3 में से कोई भी एलिमेंट मौजूद हो सकता है, ताकि A और B का जो यूनियन है इट विल बिकम 1, 2, 3, 4, 5. So in possibility 1, first possibility we have 3, 4, 5 and another element is 3. So अगर हम A का इस सेट के साथ यूनियन लेंगे so we will get 1, 2, 3, 4, 5. इसी तरह से अगर इस पॉसिबिलिटी को देखें तो यहाँ हमारे पास 1, 3, 5 मौजूद है, और अगर हम A के साथ यूनियन लेते हैं 1, 2, 3 के साथ तो हमारे पास 4 नहीं आएगा. इट्स मीन दिस सेट कैन नॉट बी दी सेट B. इसी तरह और थर्ड पॉसिबिलिटी देखें दैट इज़ 2, 4, 5. सो 2, 4, 5 में अगर हम सेट A के साथ यूनियन लेते हैं विद थर्ड पॉसिबिलिटी, तो यहाँ भी हमारे पास जो यूनियन आएगा इट विल बी इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5. सो इट्स मीन दीज टू पॉसिबिलिटी कुड बी द वैल्यूज ऑफ B. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 6 विल बी ऑप्शन C, 1 and 3. So this is our right answer. Now let's see question number 7. Consider two sets 2, 3, 5 and B equals A comma B. The binary relation to B, 3B and 4B is. So let's say set A is 2, 3 and 4. इसकी हम मैपिंग परफॉर्म करके देख लेते हैं, और सेट B हमारे पास मौजूद है A and B. The binary relation is 2B, so हम यहाँ से 2B के साथ एक रिलेशन फॉर्म कर लेते हैं 3B and 4B.
सो हमें आइडेंटिफाई करना है आइदर इट इज़ इनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन, वन फंक्शन और नॉट अ फंक्शन. सो एज वी कैन सी दैट द domain of this relation is equal to A and there is no repetition in set A or this binary relation. It's mean this is a function, so option A is the wrong answer. साथ साथ if you can see that range is not repeated, range जो है वो repeat हो रही है यहाँ पर, इसका मतलब है this could not be an one to one function and range is the subset of set B. range जो है वो सारी यूज़ नहीं हो रही, so this type of function is an into function. into function जो है वो इस तरह का होता है, so option B is the right answer for this question number 7. Now let's see question number 8. If set A is A comma B and B is equal to 10 20, then which of the following option is or are the binary relation from A to B? So अब पॉसिबिलिटी 1 को देखें तो यहाँ से जो डोमेन आएगी हमारे पास, डोमेन विल बी इक्वल्स टू A comma B and the range of this would be 10 20. सो ये हमारे पास एक बाइनरी रिलेशन है जो कि फ्रॉम A to B हो सकता है क्योंकि सेट डोमेन जो है वो सेट A के एलिमेंट्स है एंड रेंज जो है वो सेट B के अंदर मौजूद है. इसी तरह से पॉसिबिलिटी सेकंड को देखें तो डोमेन हमारे पास 10 और 20 फॉर्म होगी. सो 10 और 20 सेट A में मौजूद नहीं है, सो दिस कुड नॉट बी द रिलेशन फ्रॉम A to B. इसी तरह से थर्ड पॉसिबिलिटी देखें, सो डोमेन इज़ A दैट इज़ प्रेजेंट इन सेट A and the range is 20 present in set B, so this could be the possibility. And the last possibility could not be the relation from A to B because domain of this relation is not present in set A. So the right answer for this question would be option C, 1 and 3. So this is our right answer. Now let's come to question number 9, 10 and 11. If a universal set is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and A is the set of even numbers, so the set E would be equal to 2, 4, 6, 8 and 10. So the even numbers among these universal set is 2, 4, 6, 8, 10 and we have to find the E complement that is equal to universal set minus E. So universal set हमारे पास मौजूद है from 1 to 10. इसमें से हम इस सेट को माइनस कर देंगे, so what we will get, let's see. सो 2, 4, 6, 8, 10 कैंसिल हो जाएंगे सेट में से, सो वी विल गेट E कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल्स टू 1, 3, 5, 7 and 9. So the correct answer for question number 9 is option B. This is the right answer. Then we have question number 10. If we have this number and can also be represented as 1.01 10 raised to the power p and we have to identify the value of p. So let's shift this decimal to after between this 1 and 0, so it will become 1.01 times 10. सो डेसिमल हमने जो है वो मूव किया है टूवर्ड्स दी राइट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पर मूव करते हुए हम पावर में से सबट्रैक्ट करते हैं. सो लेट्स सी हाउ मेनी डिजिट वी हैव शिफ्टेड द डेसिमल टूवर्ड्स द राइट. सो दिस इज़ द फर्स्ट डिजिट एंड दिस इज़ द सेकेंड डिजिट. सो 10 की पावर हमारे पास इक्वल हो जाएगी -2. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 10 इज option A, p equals -2. Then we have question number 11 on converting 10 raised to the power -3 equals to this into logarithmic form. We have to find the value of m.
So let's say the logarithmic form of this expression would be equal to 10 would become the base of the log and 3 will become the coefficient. So -3 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा और दूसरी साइड हमारी कुछ इस तरह से हो जाएगी log of 0.001 to the base 10. So अगर हम इस तरह से कंपेयर करें सो m की जगह पर हमारे पास 0.001 मौजूद है. सो क्वेश्चन नंबर 11 में राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी. Now let's move to our next question, that is question number 12, and we have to simplify this logarithmic expression. We have log of 1 over x square to the base x. So इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगा log of x raised to the power -2 to the base x, और -2 को हम लेके चले जाते हैं कोफिशिएंट के अंदर. सो इट विल बिकम -2 log x to the base x, and this log of x to the base x is equal to 1. So the right answer for this question number 12 will be equal to option D, that is -2. Then we have question number 13, and in this question we have to convert this into single logarithmic form. So से single log के अंदर convert करते हैं तो सबसे पहले हम इस कोफिशिएंट को पावर के अंदर फॉर्म कर लेते हैं. So this will become log of a square minus log b power 3 plus log a. सो इसे हम सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो पॉजिटिव लॉग विल बी इन न्यूमरेटर एंड द नेगेटिव लॉग विल बी इन डिनोमिनेटर. सो से दिस लॉग पॉजिटिव लॉग, ये दोनों पॉजिटिव लॉग न्यूमरेटर में आ जाएंगे एंड दिस नेगेटिव लॉग विल बी मूव टूवर्ड्स डिनोमिनेटर. सो हमारा राइट आंसर हो जाएगा log of a cube to the b cube, and we can simplify this expression as log of a over b whole cube, और 3 को अगर हम मूव कर दें इन कोफिशिएंट सो हमारा आंसर कुछ इस तरह से हो जाएगा 3 log a over b. So the right answer of this question is in option B. This is the right answer. Now let's move to our next question, that is question number 14 and 15. 2 raised to the power minus x equals 1 over 16. So let's simplify this expression. 2 raised to the power minus x equals to 1 over 16. जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हम 16 को प्राइम फैक्टर्स के अंदर ब्रेक कर देते हैं. सो वी नो दैट 2 रेज़ टू द पावर 4 इज़ इक्वल टू 16, जिसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर -4, बिकॉज डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं. सो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हुए हमने पावर की साइन को रिवर्स कर दिया. सो 2 रेज़ टू द पावर -x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर -4. सो पावर्स को अगर हम इक्वेट कर दें, ये दोनों पावर्स जब इक्वेट हो जाएंगी, सो -x वुड बी इक्वल टू -4, माइनस माइनस विल बी कैंसल आउट, और कैंसल आउट होने के बाद द वैल्यू ऑफ x विल बिकम 4. So the correct answer for this question number 14 is option D. Let's simplify the question number 15. And this question number 15, y raised to the power 0 multiplied by x divided by x raised to the power 0 multiplied by y.
We know that the base with the power 0 is equal to 1. इसी तरह से x की power 0 will be equal to 1 multiplied by y. So the correct answer will be x over y, the option A. Now let's see question number 16. So here we have question number 16, b minus a equals 2 and b plus a equals 1. So इसे हम multiply कर देते हैं both side to get the value of a square minus b square. So a square minus b square equals to b square minus a square equals to b plus a and b minus a. So value of b plus a will be equals to 2 because ये 1/2 जब यहाँ जाके multiply हो जाएगा. So value of b plus a will be equals to 2 and b minus a is also equal to 2. So the right answer will be 4. So question number 16, the right answer is option B. Now let's see question number 17. The value of 2 plus 4 minus root 4 plus root 2. So this is simple. 2 plus 4 is 6 minus root 4 is 2 plus root 2. 6 minus 2 is 4 and root 2 will remain as it is. So the question number 17, the right answer will be option A, 4 plus root 2. Let's see question number 18. We have to find the value of this when a equals to 1 minus x. So a की जगह हम substitute कर देते हैं 1 minus x को. So 1 minus x whole cube. So थोड़ी सी changes कर देते हैं substitution के अंदर. 1/2 की जगह 1/2 लिखा हमने और a की जगह हमने पुट कर दिया 1 minus x and this plus x will be remain same. Simplify करेंगे so minus x and plus x will be cancel out. So the right answer will be equals to 1/2 whole cube, that will be equals to 1/8. The right answer is option B. One of the example of the polynomial expression in this question. So this is not a polynomial because variable is in radical sign. Similarly, this is not the polynomial because the variable has the negative power. This is not the polynomial because variable had the fractional power. So the right answer for question number 19 is option D, जिसमें हमारे पास variable radical sign में भी नहीं आ रहा, variable has the positive power और variable has the whole power, not in the fraction. So D is the right answer. Now let's simplify this question number 20. So simplify करने के लिए we can take a square as common. A square common ले लेते हैं, so we will get 1 plus b और डिनोमिनेटर कुछ हमारा फैक्टराइज होके कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगा 1 plus b and 1 minus b. So 1 plus b and 1 plus b will be cancel out. So remaining हमारे पास आ जाएगा a square over 1 minus b. So the right answer for this question number 20 is option C, a square over 1 minus b. Then we have to find the value of this expression when x equals 1 and y equals minus 1. तो इसे हम substitute कर देते हैं, x की जगह 1 और y की जगह minus 1 multiplied by 1 square, that is x square, minus xy, that is 1 multiplied by minus 1 plus y square, that is minus 1 square.
सो इसको सॉल्व करेंगे, सो माइनस माइनस विल बिकम प्लस एंड 1 + 1 इज इक्वल टू 2। इसी तरह से यहाँ से हमारे पास 1 आ जाएगा, यहाँ से +1 एंड -1 स्क्वायर इज +1, सो 2 multiplied by 1 + 1 + 1 3, that is equal to 6. So question number 21, the correct answer is option D. Let's move to our next question, that is question number 22. We have to completely factorize this expression, so 3 common ले लेते हैं इसमें, so we will get 1 minus p square. Further factorize करेंगे तो we will get 1 plus p and 1 minus p. So the correct answer in 22 is option C. Then we have to factorize this expression r square minus 3 plus 6r plus 12. तो इसे हम simplify कर लेते हैं. First of all, r square plus 6r plus 9. So this expression is a perfect square. So r square plus 3 square plus 2 into r into 3. So this is the perfect square, r plus 3 whole square. सो फैक्टराइज फॉर्म हमारे पास मौजूद है इन ऑप्शन ए, r plus 3 whole square. Then we have the question number 24. If a polynomial this is divided by the linear expression, then the remainder is 1. We have to identify that linear expression. So ऑप्शंस में से हमारे पास x की वैल्यूज़ जो आ जाती हैं, x इक्वल्स टू -1 हेयर, x इज़ इक्वल्स टू +1, x इज़ इक्वल्स टू +-q एंड x इज़ इक्वल्स टू +q. तो हम इस एक्सप्रेशन में वेर वी हैव q x प्लस q प्लस 1, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर हम x की जगह x की अगर हम वैल्यू निकालें, सो रिमाइंडर हमारे पास जो है वो इक्वल्स टू 1 आएगा. तो x की जगह हमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है. सो बारी बारी हम जो है वो यहाँ वैल्यूज़ को पुट करेंगे. सो लेट्स पुट दिस x इक्वल्स टू -1 एंड द रिमाइंडर शुड इक्वल्स टू 1. रिमाइंडर हमारे पास जो है वो 1 आना चाहिए. हम इसमें बारी बारी वैल्यूज़ को पुट करके देख सकते हैं. अगर हम x की जगह +1 पुट करें, x की जगह -q पुट करें और x की जगह +q पुट करें, तो रिमाइंडर हमारे पास इक्वल आना चाहिए 1 के. तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए में x की जगह -1 पुट कर देते हैं. सो q मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस q एंड +1. सो दिस -q and this plus q will be cancel out. So remainder हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1 के. सो द करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए में आ गया. अगर रिमाइंडर -1 के इक्वल नहीं आता तो हम रिमेनिंग जो x की वैल्यूज़ हैं उसे हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 25. इसे हमें फैक्टराइज करना है, तो सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. x² प्लस 2x प्लस 1. सिंप्लीफाई करने के बाद एज वी कैन सी दैट दिस इज़ द परफेक्ट स्क्वायर. तो परफेक्ट स्क्वायर इसे हम सॉल्व करते हैं. x² प्लस 2x एंड 1 प्लस 1 square. So this will become x plus 1 whole square. We can also write this as x plus 1 and x plus 1. Option C is the right answer. Then we have question number 26 and we have to completely factorize this expression. So it's x plus y or x plus y हम common ले लेते हैं. So x plus y is common. Then यहाँ हमारे पास रिमेनिंग बचेगा 1 माइनस दिस x माइनस y. सो माइनस वाई अगर हम मल्टीप्लाई कर दें ब्रैकेट के अंदर, सो वी विल गेट x प्लस वाई एंड 1 माइनस x प्लस y. So the correct answer is for 26 is option D.
x plus y and 1 plus 1 minus x plus y. So option D is the right answer. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को फैक्टराइज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और इन दो टर्म्स को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं. 2 minus 1 is plus 1 एंड दिस एक्सप्रेशन इज ए परफेक्ट स्क्वायर, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर. सो दिस विल बिकम x माइनस 1 होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा x माइनस 1 के. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29. Question number 28 is the perfect cube in which it is b cube minus 1 over b whole cube. So a cube minus b cube का formula apply करें, so we will get 1b minus 1 over b and b square plus b into 1 over b plus b square. So this b and b will be cancelled out, so we will get the factorized form as b minus 1 over b and b square plus 1 plus b 1 over b square. So the correct answer for this question number 28 is the option D. Then we have question 29. The polynomial this is divided by x minus 1, x plus 1 and the remainder is minus 1. So this is the divider. So यहाँ से अगर हम x की वैल्यू देखें, so x की वैल्यू minus 1 है. x की वैल्यू हम यहाँ polynomial के अंदर पुट कर देते हैं, तो a की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे and the remainder is minus 1. तो इसे हम सॉल्व करते हैं, a की जगह a लिख देते हैं और x की जगह पर -1. सो दिस इज ax क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, सो -1 का स्क्वायर ले लेते हैं और माइनस x, तो x की जगह पर -1. द रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 1, तो ये पूरा इक्वल हो जाएगा 1 के. इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो वी विल गेट -a -1 and +1 equals to 1. So this -1 and +1 will be cancelled out, तो -a is equals to 1, तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1. So the correct answer for question number 29 is option B. Now let's see the question number 30. The option which represent one of the zeros of this polynomial. So यहाँ पे हमें वैल्यूज़ बतानी है कि कौन सी वैल्यू जो है वो ज़ीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रही है. सो इसे हम यहाँ बारी बारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे. दैट x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 3. x की वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे इन वन ऑफ दिस ऑप्शन, वी विल गेट x द पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0. तो सबसे पहले x की जगह हम -1 पुट कर देते हैं. सो -1 क्यूब प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर की जगह -1 स्क्वायर और x की जगह अगेन -1 एंड -2. इसे सिंप्लीफाई करें तो -1 क्यूब इज -1, -1 स्क्वायर इज +1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज +2 एंड माइनस माइनस इज प्लस, सो वी विल गेट +2 एंड +1 and this -2. So -1 +1 and +2 -2s are cancelled, so the remainder is 0. So at x equals to -1 this polynomial is 0. So 0 of the polynomial हमें मालूम करना था, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में मौजूद है. रिमेनिंग वैल्यूज़ को अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आएगा. Now quickly let's see question number 31 and 32.
If R is equals to this, we have to find the additive inverse. So additive inverse के अंदर हम तमाम एलिमेंट की जो साइन है वो चेंज कर देते हैं. सो साइन चेंज करेंगे तो हमारा जो R है वो कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगा -a एंड प्लस b. सो -a प्लस b को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज माइनस साइन हम इस ब्रैकेट के बाहर ही प्लेस कर दें. सो हमारा जो आंसर है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, माइनस इंटू a माइनस b. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B. Then we have question number 32, in which we have a set n and we have to find the transpose of this n. Transpose में हम reverse कर देते हैं rows and column को. So this is the first row, that will become the first column. This is the second row, this will become the second column. So n transpose will be equal to this. So the correct answer is option A. Let's come to question number 33. We have E and F, and we are given with the product G cross F. The order, we have to identify the order of G. यहाँ हमारे पास एक प्रोडक्ट मौजूद है, प्रोडक्ट ऑफ G क्रॉस F, और इसका जो ऑर्डर है वो कुछ इस तरह से दैट 2 rows एंड 1 column. तो इसके अंदर 2 rows मौजूद हैं और 1 column मौजूद है. इसी तरह से अगर हम F को देखें तो F का ऑर्डर भी कुछ इसी तरह से है 2/1. सो F का ऑर्डर भी जो है वो 2/1 है. वी नो दैट कि यहाँ हमारे पास जो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होते हैं, सो मल्टीप्लाई होने के बाद जो ये जो कॉलम्स और रोज बराबर होती हैं, इसका मतलब G के भी यहाँ पर जो कॉलम है वो 2 होने चाहिए, और यहाँ जो हमारे पास रोज और कॉलम होते हैं ये हमारे पास शो करते हैं द ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट. सो ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट इज 2/1. इट्स मीन दिस विल बी 2. So as we can see, the order of the matrix G, that is 2/2. So the correct answer is option C. Now let's see the question number 34. The product of matrices E and F is equal to what? तो हमें E और F को मल्टीप्लाई करना है. सो मैट्रिक्स E और F हमारे पास यहाँ मौजूद हैं. E is 0 - 1, तो हम इसे यहाँ नोट कर लेते हैं. E is 0 and -1. इसी तरह से F को नोट करते हैं. व्हाट इज़ द वैल्यूज़ ऑफ F? F हमारे पास -1 and 0. सो -1 and 0. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इनकी पॉसिबिलिटी चेक करें कि पॉसिबिलिटी क्या होगी, सो द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज़ 1 row and 2 columns, और F का जो ऑर्डर है इट इज़ 2 rows and 1 column. So these 2 and 2 are same. It's mean multiplication is possible, and 1/1 would be the order of this matrix. So E cross F हम मालूम करते हैं. सो मालूम करने के लिए हमारे पास ये 2 ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएंगे. सो मल्टीप्लाई करने के बाद वी कैन सी कि 1/1 का ऑर्डर आएगा. दिस रॉ इज़ मल्टीप्लाइड बाय दिस कॉलम. सो 0 मल्टीप्लाइड बाय -1 एंड -1 मल्टीप्लाइड बाय -1. यहाँ हमारे पास 0 आ जाएगा और बीच में प्लस के साथ फिर यहाँ 1 आ जाएगा. -1 इंटू -1. Okay, -1 is multiplied by 0, 0 multiplied by -1, and -1 multiplied by 0. So the correct answer will be equal to 0.
So option D is the right answer. We have to find the multiplicative inverse of E square. So if we can see, E square means E matrix multiply by E matrix. E matrix को अगर हम E matrix के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं, सो इसका ऑर्डर हमारे पास है 1/2 एंड दिस इज़ 1/2. सो अगर हम देखें, सो दीज टू आर नॉट कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन. इसका मतलब है कि हम इसका प्रोडक्ट मालूम नहीं कर सकते और इनवर्स भी इस मैट्रिक्स का एग्जिस्ट नहीं करेगा. सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 35. Then we have question number 36 and 7. The matrix is and which type of matrix? Unit matrix ये नहीं है, because unit matrix के अंदर diagonals upper lower diagonal 0 होते हैं. This is not our diagonal matrix because diagonal elements के भी upper और lower diagonals 0 होते हैं. So the correct answer for this question number 36 is option C, that ये हमारा एक square matrix है. The matrix is a singular matrix. ये मैट्रिक्स जो है वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है. इसका मतलब है कि इसका डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0. सो डिटर्मिनेंट अगर हम कैलकुलेट करें, सो a मल्टीप्लाई बाय b एंड b मल्टीप्लाई बाय माइनस a, ये पूरा हमारे पास इक्वल टू 0 होगा. सो अगर हम इसे सॉल्व करें, सो a b माइनस इंटू माइनस इज प्लस, BA is equal to 0. So AB plus AB is equals to 2, AB is equal to 0 और A2 को दूसरी साइड पे हम डिवाइड कर दें, so AB will be equal to 0. So the correct answer for 37 is option B. Let's move to our question number 38. We have this matrix equation and we have to find the value of x. So इस मैट्रिक्स को हम वहाँ ले जाके नल मैट्रिक्स के अंदर प्लस कर देते हैं. सो प्लस करने के बाद the result would become same 6 3 and 0 1. नल मैट्रिक्स ऐड होगा, रिजल्ट सेम आएगा एंड x विल बी इक्वल टू 3 को हम डिवाइड कर देते हैं दूसरे मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द आंसर. इसे हमने यहाँ डिवाइड कर दिया. सो 6/3 इज़ 2, 3/3 इज़ 1, 0/3 इज़ 0 एंड 1/3 इज़ सेम. सो द राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 38 इज़ ऑप्शन A. Then we have question number 39, जहाँ हमारे पास दो इक्वेशंस मौजूद हैं. x minus 2y equals to 3 and 0x plus y equals to -1. तो इसको अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर इक्वेशन को बनाएं, so we will get 1 -2 0 and 1. Then we will have the column matrix of variables equals to the column matrix of constant. So ये हमारे पास कुछ मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म होगी जो कि हमारे पास ऑप्शन बी में मौजूद है. दैट दिस इज द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट and column matrix of variables and the column matrix of constant. Option B is the right answer. Then we have question number 40. We have this diagram in which these two triangles are congruent और हमें value of y मालूम करनी है. if E is equal to y. सो एंगल ई जो है वो y के बराबर है और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. सो यहाँ से अगर हम देखें तो E जो है वो एंगल h के बराबर है. सो E और h दोनों बराबर होंगे. एंगल E इज़ इक्वल टू एंगल h. सो एंगल h यहाँ गिवन है 66. सो हमारा जो एंगल E है वो भी 66 के ही बराबर होगा. सो क्वेश्चन 40 का जो राइट आंसर है
It is option A. Let's see the question number 41. The sum of length of FG and HJ. हमें दो साइड्स की लेंथ का सम मालूम करना है, FG प्लस HJ. सो उसी डायग्राम के ऊपर चलते हैं, FG एंड HJ. सो हमें बताए FG और HJ ये दो साइड्स हैं. FG हमें नहीं मालूम यहाँ पर, और ये जो साइड H गिवन है हमारे पास ये बराबर है JI के. सो यहाँ से अगर हम देखें तो JI और FG ये दोनों हमारे पास इक्वल होंगे. कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट में ही हमें नज़र आ रहा है कि FG और IJ ये दोनों इक्वल होंगे आपस में. तो IJ हमारे पास H यूनिट्स के बराबर है. सो हम यहाँ पे लिख देते हैं IG और FG बराबर है, इट इज़ इक्वल टू H. हमें यह मालूम करना है FG और HJ. F से लेकर G तक की लेंथ इज़ इक्वल टू H, और H से लेकर J तक की यूनिट अगर हम यहाँ से देखें, सो HJ इज़ इक्वल टू EG. ये साइड जो है वो दोनों आपस में बराबर है, इसी कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट से हमने आइडेंटिफाई किए हैं. सो दिस इज़ F, सो दिस साइड विल आल्सो बी इक्वल टू F. HJ इज़ इक्वल टू F. सो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो इक्वल होगा H प्लस F के. सो लेट्स सी दी ऑप्शन H प्लस F. सो 41 का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन D. Let's see question number 42. So 42 में हमारे पास एक पैरेललोग्राम मौजूद है, and we know that the opposite sides of the parallelogram are equal. So ये 8 है, so this way K minus R जो कि equal होगा 8 के, और this 28 तो यहाँ एंगल भी हमारा 28 के बराबर होगा, और ये 43 जो है वो यहाँ पर भी 43 के बराबर होगा. सो K जो है वो कह रहे हैं 24 के बराबर है, तो हमें R की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. सो K माइनस R इज़ इक्वल टू 8. सो K की जगह हम 24 पुट कर देते हैं. 24 माइनस R इज़ इक्वल टू 8. 24 को इक्वेशन की दूसरी साइड माइनस कर दें तो 8 माइनस 24 that will be equals to minus 16. So minus R is minus 16, so R will be equal to plus 16. So correct answer in question number 42 will be option C. इसी तरह से अगर हमें एंगल SRQ मालूम करना है, SRQ, सो ये पूरा एंगल जो SRQ है वो इक्वल होगा इस 43 और इस 28 के सम के. 43 प्लस 28, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, सो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हमारे पास आ जाएगा 71 डिग्रीज. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 24. इस क्वेश्चन नंबर 24 में VW इज़ द लॉन्गेस्ट साइड, VW इज़ द लॉन्गेस्ट साइड, एंड UV इज़ द स्मॉलेस्ट साइड. UV जो है वो स्मॉलेस्ट साइड है. इसका मतलब ये हुआ कि C इज़ द ग्रेटेस्ट एंगल, सॉरी C इज़ द स्मॉलेस्ट एंगल. C जो है वो सबसे छोटा एंगल होगा. Why? बिकॉज C जो है वो साइड एंगल है अपोजिट टू द स्मॉलेस्ट साइड. C जो है वो सबसे छोटा होगा, जबकि A जो है वो सबसे बड़ा होगा. A इज़ द लार्जेस्ट. सो एंगल्स के दरमियान रिलेशन कुछ ऐसा बनेगा दैट A इज़ ग्रेटर दैन B ग्रेटर दैन C.
सो C ग्रेटर देन A कह रहे हैं, सो दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज C सबसे छोटा एंगल है. B ग्रेटर देन A इज इनकरेक्ट बिकॉज A सबसे बड़ा एंगल है. A ग्रेटर देन C, A greater than C is the correct one because A is the longest and FC is the largest. So this option D is also incorrect. Option C हमारा question number 44 का right answer है. Then question number 45. For the given triangle ABC, we have to identify the length of side AB. Side AB की हमें length मालूम करनी है. सो सबसे पहले तो हम इस एंगल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं. दिस एंगल C विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 74 माइनस 53. सो इसे अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लें तो एंगल C हमारे पास इक्वल होगा 53 के. सो दिस इज़ 53 एंड दीज टू एंगल्स आर सेम. इट्स मीन दीज टू साइड्स विल बी इक्वल. सो ये दोनों साइड्स भी y के बराबर होंगी. दोनों एंगल्स बराबर हैं, दोनों साइड्स बराबर होंगी. सो ए बी इज इक्वल टू वाई. क्वेश्चन में हमें ए बी आइडेंटिफाई करना था. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 46. इन द कोरस्पोंडेंस ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर एंड सी ए इक्वल्स आर पी. Then the correct relation between the angles will be. Angles के दरमियान हमें relation बताना है. So from this question we know that A will be equals to P. Angle A angle P के बराबर होगा और angle B angle Q के बराबर होगा. Angle B is equal to angle Q and finally C will be equals to R. This A equals to P, B equals to Q and C equals to R. So angle C is equal to angle R. सो लेट्स सी यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. बी एंगल इज इक्वल टू क्यू. सो ऑप्शन डी में हमारे पास राइट आंसर मौजूद है फॉर क्वेश्चन नंबर 46. नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 47. इन द गिवन ट्राइंगल ए बी सी, डी इज पैरेलल टू ए बी. डी ई जो है वो पैरेलल है ए बी के एंड करेक्ट रिलेशन हमें बताना है बिटवीन दी साइड्स ऑफ दीज टू. सो हमें पता है कि इफ़ दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर ये दो साइड्स ट्राइंगल की पैरेलल हैं तो इसका मतलब है कि ये जो साइड डी ई है वो हमेशा हाफ के बराबर होती है ऑफ साइड ए बी. सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट ए बी is equal to 2 times DE. AB equals to 2 times DE. इसी तरह से if these two sides are related that DE is equal to half of AB, this also shows that this point D and point E are the midpoints of these two sides. D और E जो है वो दोनों इन साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं. इसका मतलब ये हुआ कि ये साइड और ये साइड बराबर होंगी. इसी तरह से ये साइड और ये साइड आपस में बराबर होंगी. सो क्वेश्चन नंबर 47, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दैट AD is equal to CD. Now let's see the question number 48, and in this question we have a triangle ABC
और डी ई और एफ जो है वो इस ट्राइंगल्स की साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं और इन सेगमेंट्स का बताना है कि सेगमेंट्स क्या बनी हुई है लाइन ए एफ बी डी एंड सी ई। सो ए से लेकर एफ तक अगर हम देखें तो ए इज़ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एंड एफ इज़ द मिड पॉइंट। तो जब हम किसी ट्राइंगल के वर्टेक्स को उसके ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास मीडियन ड्रॉ हो जाता है। सो वी आर गिवन विद 3 मीडियंस ऑफ दिस ट्राइंगल। सो ये जो 3 हमारे पास ड्रॉ किए हुए दीज आर नोन एज मीडियंस। सो क्वेश्चन नंबर 48 का जो करेक्ट आंसर है इट इज ऑप्शन बी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 49. In this triangle, AB is a line segment और AC और BC आपस में बराबर हैं। AC और BC बराबर हैं। जब ये दो डिस्टेंस बराबर हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है और AD और BD आपस में बराबर हैं। The correct relation of AD, BD and angle D. So angle D is equals to 90. So these options are incorrect. और AD and BD are equal. So option C हमारा इस क्वेश्चन का right answer हो जाएगा option C. Then we have the last question of this year 2021. The correct measurement of the sides of the triangle are. We know that the sum of sides is always greater than the third side. So अगर हम 5 plus 17 करते हैं तो 5 plus 17 is 12. That is not greater than 13. The incorrect answer. 6 plus 6 is 12. That is not greater than this third side. This option is incorrect. 7 plus 7 is 14. That is greater than 10. And 9 plus 3 is 12. That is not greater than 14. So the correct answer for this last question in this year 2021 is option C.